high concentration of ions, or dilute if it has low concentration of ions. It means an electrolyte is called as concentrated agar if it has high concentration of ions, and it is called dilute if it has low concentration of ions. Means depending upon the concentration of ions present in a solution, in a electrolyte, your electrolyte can be concentrated or dilute. So where we use electrolytes, electrolytes are used in replacement therapy and for the correction of acid base balance in various body fluid compartments. So this is the major application of electrolytes. They are used in replacement therapy and for the correction of acid base imbalance in the body. This is clear to all. Definition of electrolyte. हाँ जी बेटा, बॉडी में हमारे मेन इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं जो बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट है? सोडियम इज देयर, chloride is there, magnesium, calcium and potassium. So these are the main electrolytes which are present in body. Wait, just hold for 2 seconds, okay? I will be continuing very soon. हेलो हेलो, हाँ जी क्लास. Yes, ma'am. Sorry for distraction, students. Actually, there was something urgent. So where were we? We were on the definition of electrolytes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So first slide is clear to everyone. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Okay. Why it is not opening? What is the problem? So I have told you the main electrolytes that are present in body fluid. Okay, we have sodium, chloride, magnesium, potassium, and calcium. Now, what are the main function of these electrolytes? So main function is they maintain the electrolyte balance in your body cells. They manages your blood pressure and keep your heart function properly. Assist nervous system by aiding in correct function of tissues needed for sending nerve impulses. They help the muscles to contract, enhance muscle control, growth and health of your cells, and promotes the efficient cognitive functioning by helping to deliver oxygen to the brain. So these all are the functions of electrolytes. So where you need electrolytes for maintaining balance in your body. Secondly, they are used for managing the blood pressure, means they play a vital role in maintaining or managing your blood pressure. They also assist in nervous system, because you all know that nervous system is responsible for sending impulses, sensations to the different body systems. So over there also electrolytes play a important role. They also helps in muscle control, growth and health of your cells. Last function, that is promote efficient cognitive functioning. Efficient cognitive functioning का meaning है that electrolytes also helps in enhancing your memory power. So they function by helping to deliver oxygen to the brain. So some of the electrolytes have a tendency to efficiently work as a memory enhancing agent. So this is the division of body fluids in three compartments. A body fluids are mainly divided into three compartments. We have the intracellular compartment, we have the extracellular compartment, and we have the transcellular compartment. So first compartment, as the word suggests, intracellular का मतलब है fluid which is present within the cells. Okay, इसके लिए जो example है that is cytoplasm, and it forms around 45 to 50% of your body weight. So this is the major compartment. सबसे बड़ा compartment जो body fluids का है that is intracellular compartment, and it forms 45 to 50% of body weight, and its volume is 30 liter. कितना हमारी body में present है intracellular compartment में fluid? Volume is 30 liter. Is it clear? Yes, ma'am. Second जो है बेटा that is the extracellular compartment. Basically extracellular compartment जो है we have plasma which constitutes mic किसका on है बेटा off करो 4 to 5% of body weight, and its volume is 3 to 5 liters. मैम आपकी वॉइस डबलिंग हो रही है। हर्ष अपना माइक बंद कर ले। माइक ऑन है। आपका माइक ऑन है, जिसका भी माइक ऑन है बेटा ऑफ करो माइक, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है ऐसे। तो बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में आपका एक तो होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब है फ्लूइड बिटवीन द
cells. So it constitutes 12 to 15% of your body weight and its volume is 10 liter. Total कितना हमारे पास interstitial fluid होता है? 10 liters होता है. Plasma is approximately 3 to 5 liters. And last compartment जो होता है body fluids में, that is transcellular compartment. Basically transcellular compartment वो है जिसमें fluid that is present inside the GIT, that is your gastrointestinal tract. आपकी आईज में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ग्लैंड्स में, सेनुवियल में, सेरिब्रोस्पाइनल में, पेरिकार्डल और पेरिटोनियल फ्लूइड्स जो हैं, दे ऑल कम अंडर द ट्रांससेलुलर कंपार्टमेंट. नाउ ऑल दीज फ्लूइड्स हमारी बॉडी में जो कंपार्टमेंट्स में जो भी फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं, दे हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, बॉडी के फ्लूइड्स में जो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रेजेंट है, दैट इज डिफरेंट इन ऑल द फ्लूइड्स. ठीक है, ऑल द फ्लूइड कंपार्टमेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स which are permeable to water, many small organic and inorganic solutes, and selectively permeable to certain ions. These lines are clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. मतलब है हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंपार्टमेंट है, जो कंसंट्रेशन है, दैट इज डिफरेंट. और हमारे जो फ्लूइड कंपार्टमेंट्स है वो एक दूसरे से कैसे सेपरेटेड है? थ्रू दी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स. उन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को कौन क्रॉस कर सकता है? वाटर मींस दैट कैन इजीली परमिएबल, दैट इज वाटर. आपके स्मॉल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं एंड सर्टेन आयंस. नाउ बेटा, दिस इज द टोटल बॉडी वाटर कंटेंट. हमारी बॉडी में टोटल वाटर कंटेंट कितना है? 42 लीटर्स इज प्रेजेंट. आउट ऑफ दीज इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारे पास 14 लीटर है एंड इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड वी हैव 28 लीटर. यू ऑल नो एक्स्ट्रा सेलुलर इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसमें 10 लीटर्स है, प्लाज्मा में 3 एंड ट्रांससेलुलर फ्लूइड में दैट इज 1 liter. So this is the body water content which is present in human body. So next is major electrolytes. अब हमें पढ़ना है कि हमारी बॉडी में कौन कौन से मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स है जो फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं. सबसे पहला जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज सोडियम. ठीक है, इसमें जो प्लाज्मा लेवल में इसकी मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में जो वैल्यू है दैट इज 136 to 142, whereas इंट्रासेलुलर लेवल में जो प्रेजेंट है दैट इज 10. ठीक है, सेकेंडली पोटेशियम जो है हमारे प्लाज्मा लेवल में 3.8 to 5 प्रेजेंट होता है, whereas इन इंट्रासेलुलर 141 to 141. मैं फंक्शंस आपको यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, मैंने आपको यहाँ पे फंक्शंस भी दे रखे हैं इंडिविजुअल इलेक्ट्रोलाइट्स के, बट डिटेल में वो पूरा हम आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज कैल्शियम. Calcium is present in 4.6 to 5.5 and in intracellular it is 1. Magnesium 1.3 to 2.1 and in intracellular it is 58. Chloride जो है that is present 95 to 103 and in intracellular level it is 4. Bicarbonate 28. This is all given in milli equivalent per liter. Electrolytes जो होते हैं उनके यूनिट जो है that is milli equivalent per liter and in intracellular fluid it is 10. Phosphate जो है 1.7 to 2.6, whereas in intracellular it is 75. Sulfate जो है that is 1 and in intracellular level it is 2. So now we will take the major physiological ions which is present in the human body. So first major physiological ion is sodium. Sodium, it is an important abundant extracellular ion and performs many fundamental functions in the body. तो आप सब लोगों को पता है सोर्सेस क्या है, हमारे मेजर सोर्स क्या होता है बेटा सोडियम का? सॉल्ट जो कॉमनली हम यूज करते हैं दैट इज कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ सोडियम फॉर द बॉडी. ठीक है, अदर सोर्सेज जो हैं जिसमें सोडियम प्रेजेंट होता है दीज आर सिलेरी, बीट्स, मिल्क, ब्रेड, leafy vegetable, cheese, chicken and eggs. So this is the about the sources of sodium. Next is functions.
सो फंक्शंस क्या क्या हैं सोडियम के बॉडी में? सोडियम along with potassium helps to maintain the normal water balance throughout the body. This is the first function that sodium जो है वो help करता है पोटेशियम के साथ to maintain the normal balance in the body, normal water balance in the body. Second function जो है sodium also regulates acid alkali balance of the body in association of chloride and bicarbonate. So it helps in water balance, it helps in regulating the acid alkali balance. Third function जो है sodium, it facilitates muscle contraction and involved in nerve cell transmission. Sodium ions along with potassium and chloride ions trigger muscle contractions and nerve impulses across cell membrane. So this is other function. Sodium जो है वो muscle contraction process में भी help करता है and it also helps in nerve cell transmission. ठीक है, लास्ट जो फंक्शन है दैट इज इट रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम. फंक्शन सोडियम के क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम. यस मैम. नाउ बेटा डिजीज अगर बॉडी में सोडियम की कमी आती है या सोडियम बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी में क्या कंडीशन डेवलप हो जाती है? डिजीज कंडीशन. सो फर्स्ट कंडीशन जो है दैट इज हाइपोनेट्रीमिया. आप सब लोगों को पता है जब हाइपो वर्ड यूज होता है तो मतलब क्या होता है उसका? किसी चीज की कमी होना. ठीक है, जब हाइपर वर्ड होता है तो दैट मीन्स द लेवल ऑफ एनीथिंग इज राइज्ड अप इन योर blood. ठीक है, so hyponatremia is a condition in which the level of sodium in the blood is low. ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं अगर आपकी बॉडी में सोडियम का लेवल कम होता है? यू विल बी हैविंग नोजिया, वॉमिटिंग, टायर्डनेस, मसल स्पाम्स, हेडेक, मेंटल चेंजेस. ठीक है, किस कारण की वजह से बॉडी? नोजिया क्या होता है बेटा? नोजिया में चक्कर आना. ठीक है, it may occur due to kidney failure, Addison disease, diarrhea, cirrhosis and congestive heart failure. ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया किस किस कारण की वजह से होता है? या तो आपको किडनी फेलियर हुआ है, या फिर आपकी बॉडी में एडिसन डिजीज है, या डायरिया बहुत ज्यादा हो गया, या सिरोसिस है, या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है. सिरोसिस जो है बेटा वो लिवर में डिजीज होता है. जब आप एक्सेसिव अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो वहां पे लिवर सिरोसिस डेवलप होता है, तो उस डिजीज को हम लिवर सिरोसिस कहते हैं. हाइपरनेट्रीमिया का मतलब है जब बॉडी में ब्लड में आपका सोडियम लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए. अगर सोडियम लेवल आपके ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो आपकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? एक तो आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, यू विल हैव वीकनेस, नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट मींस आपको भूख नहीं लगेगी, मसल ट्विच इज देयर, कंफ्यूजन एंड ब्लीडिंग इन ब्रेन. ठीक है, इससे बेटा ये इट में कॉज ड्यू टू किन किन कारणों की वजह से बॉडी में सोडियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है? दैट इज डिहाइड्रेशन, डायरिया, हाई फीवर. और ये कॉमनली जो है ओल्डर एडल्ट्स में और इन्फेंट्स में देखा जाता है. So next important ion or electrolyte is potassium. ठीक है, potassium is an essential macro mineral which act as a principal intracellular cation. ठीक है, almost 98% potassium is found inside the cells. A good intake of potassium will reduce the overall mortality by 20%. अगर आप good intake of potassium ले रहे हो अपनी डाइट में, as you know potassium is also essential मैक्रो मिनरल, तो आपकी जो मोर्टेलिटी, आपका जो डेथ रेट है दैट डिक्रीज बाय 20%. सो मेन सोर्सेस क्या होते हैं पोटेशियम के? स्पिनच इज देयर, पार्सले, ल्यूटिस, पीज, लिमा, बीन्स, टोमेटो, पोटैटो, ऑरेंजेस एंड अदर सिट्रस फ्रूट्स, बनाना एंड एप्पल्स. सो दीज ऑल आर सोर्सेज ऑफ पोटेशियम. नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ पोटेशियम. फंक्शंस सिमिलरली जैसे हमने बोला था पोटेशियम along with sodium it helps to maintain your normal water balance. Over here also potassium along with sodium regulates the extracellular fluid volume including fluid volume. So potassium controls the electrical activity of heart muscles and also regulates your blood pressure. Potassium also plays a vital role in cellular biochemical reactions and energy metabolism. ठीक है, it also play an important role in energy metabolism processes. So next
सेम वही है जैसे मैंने आपको बताया था सोडियम के केस में आपके पास जो डिजीज कंडीशंस आ रही थी वो हाइपोनाइट्रीमिया और हाइपरनाइट्रीमिया थी। यहाँ पे पोटेशियम की डेफिशिएंसी से जो हमारे पास डिजीज डेवलप हो रहा है दैट इज हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैलेमिया। हाइपो का मतलब है बॉडी में जब पोटेशियम कम हो जाता है ब्लड में, हाइपर का मतलब है जब बॉडी में पोटेशियम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो कॉजेस क्या है? इट इज कॉज ड्यू टू वॉमिटिंग, डायरिया, कशिंग सिंड्रोम एंड डायबिटिक कोमा। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं कैलेमिया के? यू विल हैव मसल वीकनेस, पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी फेलियर, लो ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज इन मेंटल एक्टिविटी। ठीक है, हाइपर कैलेमिया में बेसिकली सिम्टम्स क्या आते हैं? You will have nausea, muscle weakness, tingling sensation, decrease in heart rate। ठीक है, किन कारणों की वजह से बॉडी में हाइपरकैलेमिया होता है? इट इज ड्यू टू किडनी डिजीज, एडिसन डिजीज, डिहाइड्रेशन एंड टाइप 1 डायबिटीज। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल आयन इज, So हाँ जी, suppose like if there is hyperkalemia, what are the effects on the body? What सॉरी harmful क्या कह effects रहे it हो can cause? Suppose a person is suffering from type 1 diabetes, and due to this reason, hyperkalemia caused. What are the effects on the body? बेटा अगर आपकी बॉडी में हाइपर कैलेमिया होगे तो आपको नोजिया, मसल वीकनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, हार्ट रेट आपका बहुत ज्यादा घट जाएगा, ये सारे सिम्टम्स आएंगे। मीन्स आप बहुत जल्दी मतलब आपको बहुत जल्दी थकान हो जाएगी, आपको नोजिया रहेगा, आपको ऐसे लगेगा बॉडी में सेंसेशंस हो रही हैं, आपका जो हार्ट रेट की एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो नेक्स्ट Can इज, it lead to some other disease? सॉरी Can क्या it कह lead रहे हो? to some other disease? Obviously, when your heart is not working properly, when your muscles are not working properly, definitely they will lead to some dangerous disease। अगर हार्ट की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, आपका ब्लड जो है वो प्रॉपरली पंप नहीं हो रहा है थ्रू हार्ट, डेफिनेटली योर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी विल सफर विद ऑक्सीजन, है ना? तो अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो डेफिनेटली एक्टिविटी जो वाइटल ऑर्गन्स की है वो वहां पे इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आयन जो है बेटा दैट इज मैग्नीशियम। Magnesium is the fourth most macro mineral in the body after calcium, sodium and potassium। Around 50 to 60% of magnesium जो है आपका बोन्स में प्रेजेंट होता है और रेस्ट 30% जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। सोर्सेज जो है मैग्नीशियम के, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, स्पिनच एंड कैबेज, लेग्यूम्स, सीड्स, नट्स, सीरियल्स, स्पाइसेस, कोका, मीट, मिल्क एंड फ्रूट। सो ये सारे सोर्सेज हैं जिसमें आपका मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। अब मैग्नीशियम के फंक्शंस क्या है? मैग्नीशियम इज एन इंपॉर्टेंट कोफैक्टर फॉर मोर देन 300 एंजाइम्स दैट रेगुलेट वेरियस बायोकेमिकल फंक्शंस इन द बॉडी। यू नो मैग्नीशियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोफैक्टर। हमारे जो बॉडी में 300 मोर देन 300 एंजाइम्स हैं उनका रेगुलेशन जो है दैट इज डन बाय मैग्नीशियम, जो कि बॉडी में इंपॉर्टेंट केमिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो एंजाइम्स। मैग्नीशियम जो है इट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ लेक्सेटिव एंड एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। लेक्सेटिव्स वो होते हैं जो आपके स्टूल पासिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्पेशली अगर आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन हुई है तो वहां पे हम मैग्नीशियम कंटेनिंग एजेंट्स देते हैं जिनको हम लेक्सेटिव्स बोलते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह दिया जाता है। ठीक है, एंटासिड्स बेसिकली दैट न्यूट्रलाइजेस, इसमें हम जो देते हैं दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, इसके अलावा मैग्नीशियम का जो, हेलो मैम। हाँ जी मैम आपने बोला स्टूल पास, ये क्या होता है? बेटा, जो लेक्सेटिव्स होते हैं ना, ये लेक्सेटिव्स वो ड्रग होते हैं जो स्टूल पास करने में हेल्प करते हैं। जैसे कई बार बॉडी में आपकी कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाती है, स्टूल पास इजीली नहीं हो रहा है, तो वहां पे डॉक्टर्स आपको क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं लेक्सेटिव्स। अगर बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है, बहुत ज्यादा पुरानी कॉन्स्टिपेशन है और वो मतलब वो ठीक नहीं हो रही है, तो डॉक्टर लेक्सेटिव की जगह एक दूसरा ड्रग आपको दिया जाता है, दूसरा एजेंट दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं कैथार्टिक्स, जो कि एक स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ लेक्सेटिव है। ठीक है, तो उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है? उसमें बेसिकली मैग्नीशियम ही प्रेजेंट होता है एज अ इंग्रेडिएंट, चाहे मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्म में हो, सल्फेट की फॉर्म में हो, हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में हो, इट कंटेन्स मैग्नीशियम।
ठीक है. थर्ड फंक्शन जो है, इट प्ले अ वाइटल रोल इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स इन nerves, impulse, conduction and contraction of muscles. This is the third function. Definitely magnesium also helps in the transport of sodium and ions across the cell membrane. And another function is it also strengthens the immune system and also helps in maintaining the healthy bones. लास्ट फंक्शन है ये मैग्नीशियम का, ये आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रेंथ करता है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है और ये ऑल्सो हेल्प करता है इन मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स. नाउ डिजीज कंडीशन, जैसे हमने बाकी कंडीशन, बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स, बाकी आयंस में पढ़े थे, हमने सोडियम के केस में पढ़े थे, हमने पोटेशियम के केस में पढ़े थे. सिमिलरली मैग्नीशियम की अगर डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, लेवल जो है मैग्नीशियम का कम होता है, दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपोमैग्नीशिया. ठीक है. इसमें क्या होता है, पेशेंट्स को मसल्स क्रैम्प्स होते हैं, स्पाम्स होते हैं, वीकनेस हो जाती है, ट्रीमर्स हो जाते हैं, हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन आ जाती है, हाइपोकैलेमिया. मींस अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी आ रही है तो आपको कैल्शियम की भी कमी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी. यू विल बी हैविंग पोटेशियम लेवल आल्सो डिक्रीज एंड देयर आर चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीजर्स. ठीक है. सीजर्स आपको पता है क्या होते हैं? सीजर्स पता है बेटा? नो मैम. मीन्स दौरे आते हैं. अगर आपको मैग्नीशियम की कमी आती है बॉडी में, बॉडी फ्लूइड में अगर आयरन मैग्नीशियम कम हो जाता है, यू विल सफर सीजर्स, मीन्स दौरे आना. ठीक है. हाइपर मैग्नीशिया इज अनदर कंडीशन जिसमें आपका लेवल ऑफ मैग्नीशियम जो है वो ब्लड में बहुत ज्यादा हाई हो जाता है. इसमें बेसिकली क्या मैनिफेस्टेशंस होती है, आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है, कन्वर्जन्स आते हैं, आपको वीकनेस होती है, कंफ्यूजन्स एंड लो ब्लड प्रेशर. अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, कन्वर्जन्स क्रिएट हो जाएंगे, आपको वीकनेस आ जाएगी, कंफ्यूजन रहेगी और लो ब्लड प्रेशर रहेगा. अनदर इंपॉर्टेंट मिनरल और आयन इज कैल्शियम. इट इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द बॉडी एंड रिक्वायर्ड टू कैरी आउट वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. अराउंड 99% जो कैल्शियम है बेटा वो आपके बोन्स में प्रेजेंट होता है एंड रिमेनिंग 1% इज इन द स्केलेटल टिश्यू. सो सोर्सेस क्या क्या हैं कैल्शियम के? नट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, एग्स है, केन्ड फिश विद बोन्स, मिल्क, फोर्टिफाइड टोफू एंड फोर्टिफाइड सोय मिल्क. So these are all sources of calcium. Now what are the functions? आप सबको पता है calcium is good for maintaining the healthy bones and teeth. आपके teeth और bones के लिए calcium is very important. It support the synthesis and function of blood cells. Blood cells का proper function मीन्स उनको परफॉर्म करने के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट रेगुलेट्स वेरियस सिक्रीटरी प्रोसेसेस सच एज एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड मोटिलिटी ऑफ सेल. This is also where calcium play an important role. Endocytosis means going inside the cell, exocytosis is coming out from the cell, and motility of cell. It is also required for muscle contraction and transmission of nerve impulses. It is also important for blood pressure regulation and controlling the heart rate. It also acts as a messenger in cell signaling. Means whenever there is any message that is to be go through cell signaling, over there also calcium play a important role. Next is disease condition, means hypocalcemia. अगर बॉडी में आपका कैल्शियम लेवल बिलो 7 mg पर डेसीलीटर. फंक्शन एक बार और बताना मैम. क्या बेटा? फंक्शन पिछली स्लाइड एक बार और बता दो. हाँ जी. कौन सा फंक्शन समझ नहीं आया बेटा, वो पूछो मुझसे. एक बार शॉर्ट टर्म में बता दो ना आप हिंदी में. बेटा कैल्शियम जो है आपकी बोन और टीथ के लिए बहुत जरूरी है. ठीक है. आपके ब्लड सेल्स की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है और सिंथेसिस है उसके लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है. जितने भी बॉडी में सिक्रेटरी प्रोसेसेस होते हैं जैसे एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस या मोटिलिटी ऑफ सेल है, वहां पे भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मसल कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस मींस जहां से आपकी सेंसेशंस डेवलप होती है, इम्पल्सेस के थ्रू वो डिफरेंट ऑर्गन्स पे जाती है, वहां पे भी कैल्शियम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेशन और हार्ट रेट को कंट्रोल करने में भी कैल्शियम इज प्लेइंग अ इंपॉर्टेंट रोल. इट ऑल्सो एक्ट एज अ मैसेंजर.
मोटिलिटी ऑफ सेल क्या है? क्या बेटा? मोटिलिटी ऑफ सेल मोटिलिटी ऑफ सेल मीन्स मोटाइल मीन्स मूविंग फ्रॉम हियर एंड देयर, लाइक किसी भी उसको मूव करना है सेल के अंदर, तो दैट मोटिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय कैल्शियम, क्योंकि इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो ना। मोटिलिटी वर्ड का मीनिंग होता है मोटाइल, जो चीज आ जा सकती है, मोटाइल होती है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ मैसेंजर इन सेल सिग्नलिंग, सो मैसेजेस में भी जो कैल्शियम है दैट प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल। नाउ डिजीज कंडीशन कौन कौन सी होती है बेटा हमारे पास? एक तो होता है हाइपोकैल्शीमिया, जिसमें सिमिलरली आपका लेवल जो कैल्शियम का वो कम हो जाता है, ठीक है। उससे अगर क्या होगा, बॉडी में कन्वर्जन्स और न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी डेवलप हो जाएगी। हाइपर कैल्शियमिया मीन्स जिसमें बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। बेसिकली यू विल हैव हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। एंड बेसिकली hypercalcemia causes constipation, muscle weakness and loss of appetite. Next is osteoporosis. It is a disease that occurs due to the long term wait a minute beta, just hold beta एक minute. कौन हो रहा है? पापा जी कहाँ है? पापा जी कहाँ बैठे हो? मेरी क्लास अभी है। नहीं तो आप वहां हेलो, हाँ जी बेटा। हाँ जी स्टूडेंट्स, ऑस्टियोपोरोसिस जो है दैट अकर्स ड्यू टू द लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। So basically what happens, you are seeing my slides? Yes ma'am. Yes, ma'am. So basically what happens, it makes your bones weaker, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी आ जाएगी तो आपकी बोन्स जो है वो वीकर हो जाएंगी। इट विल रिजल्ट इनटू मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स, बहुत जल्दी फ्रैक्चर्स होंगे। एंड इट रिजल्ट इन द पेन एंड डिसेबिलिटी इन वॉकिंग। स्पेशली जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये एल्डर एज में होता है एंड अबव द एज ऑफ 60 इयर्स। नेक्स्ट जो डिजीज है दैट इज रिकेट्स। रिकेट्स जो है दैट इज वेरी कॉमन, स्पेशली इट इज सीन इन स्मॉल चिल्ड्रंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपकी सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स टेक प्लेस एंड इट आल्सो अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। सो बेसिकली क्या क्या मैनिफेस्टेशंस होती है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिसमें रिकेट के, जिसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। जिन बच्चों में रिकेट्स डिजीज होती है उनमें बोर्ड लेग्स होती हैं, बोन पेन है, स्टंटेड ग्रोथ है, फोरहेड जो है वो बहुत बड़ा होता है, इंसोम्निया। ओके, दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स दैट आर सीन in children suffering with rickets. So next is extracellular anion is chloride. It is found mainly in body fluids. It exists as chloride anion that combined with sodium to form sodium chloride. ठीक है, सोर्सेज जो हैं ऑलमोस्ट वही यू कैन हैव इन टेबल सॉल्ट, सीवेड्स, वेजिटेबल्स, ओलिव्स, मिल्क एंड एग्स। इन सब में जो है क्लोराइड प्रेजेंट होता है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस? इट इज an important constituent of hydrochloric acid. The hydrochloric acid is the key acid of the stomach. ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, क्लोराइड। इट इज एन इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट जो हेल्प करता है मेंटेनिंग acid base balance, transmitting nerve impulses and muscle contraction. Muscle contraction में acid base में level maintain करने में और nerve impulses transmit करने में भी chloride एक important role play करता है। It also helps the liver to clear the products. Means जो भी आपके liver में, it also helps in the liver to clear the product, to make the products, to make the toxic substances out from the body. Chloride play an important role in that also. Now what are the disease condition? Hyperchloremia, जहाँ पे आपका क्लोराइड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। It occur due to the loss of body fluids, kidney failure and diabetes. बेसिकली इससे क्या होता है, आपकी रिटेंशन हो जाएगी, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, मसल वीकनेस होगी, ट्विच, इरेगुलर हार्ट रेट होगा,
कंफ्यूजन होगी, पर्सनालिटी चेंजेस होंगे, नंबनेस आपको फील होगी एंड सीजर्स एंड कन्वर्जेंस। ठीक है। अनदर कंडीशन जो होती है दैट इज हाइपोक्लोरीमिया, जिसमें आपका लेवल ऑफ क्लोराइड जो है वो ब्लड में कम हो जाता है। इट अकर्स ड्यू टू द मोर यूज ऑफ डायरेटिक्स। डायरेटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो हम यूज करते हैं टू मेक द यूरिन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड मेकिंग इट पास आउट फ्रॉम द बॉडी इजिली। ठीक है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं हाइपोक्लोरीमिया के? यू फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, fluid loss and dehydration and vomiting. Now next important iron, physiological iron, is iron. Iron is an important component of hemoglobin. You all know about iron. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is an important component of hemoglobin that performs several important functions in the body. ठीक है। Around 70% जो iron है is found in erythrocytes of blood as a component of hemoglobin, and 5% जो iron है that is present in myoglobin as myoglobin in muscles. ठीक है। Iron जो है it exists in a form of a complex bound to protein as heme compounds in hemoglobin, myoglobin, cytochromes and non-heme compounds as ferrin, flavin, iron, enzymes and transferrin. So iron जो है it is occurring in the form of a complex bound to protein as heme compounds and non-heme, means दो तरह से इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। हीम कंपाउंड्स में हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम की फॉर्म में प्रेजेंट है, और नॉन हीम में फेरिटिन, फ्लेविन, आयरन, एंजाइम्स एंड ट्रांसफेरिन। सो मेन सोर्सेस क्या होते हैं आयरन के? White beans are there, lean beef is there, spinach, lentils, tofu, chickpeas, pork, mussels, whole wheat bread, meat, fish, raisin, bran, apples, jaggery and dried fruits. These are all sources of iron जिसमें iron present होता है। Functions क्या है? Hemoglobin is essential for the transport of oxygen from lungs to the various body tissues, and myoglobin stores, transport and supply oxygen in muscles. So this is major function that hemoglobin is very essential, transport of oxygen from lungs to various parts of the body, and myoglobin stores, transport and supply oxygen in muscles. Iron in the form of heme proteins and non-heme proteins are essential for the respiration process and energy metabolism process. ठीक है। यहाँ पे भी आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आयरन ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एंड कोलाजन. Collagen is also a form of protein. Over there also iron helps in the synthesis. Iron is required for the proper functioning of immune system. आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए यू रिक्वायर आयरन। तो डिजीज कंडीशन क्या होती है? अगर बॉडी में आपका आयरन कम हो जाएगा तो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाएगा। इट इज द कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया दैट इन व्हेन बॉडी इज डेफिशिएंट इन आयरन। मीन्स ये वो एनीमिया है जो बॉडी में नॉर्मली डेवलप होता है अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी आती है। सो इट इज अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज seen in vegetarians, growing children, young girls, pregnant and lactating mothers. In this, the blood hemoglobin is reduced to a level of less than 12 gram per dl, and other manifestations are tiredness, shortness of breath and chest pain. I think ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं you all have faced this iron deficiency anemia. गए हो कभी डॉक्टर के पास? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन हैज कन्वर्टेड इनटू द डेवलपमेंट ऑफ एनीमिया। फील किया ये चीज? हुआ है कभी? नो मैम। No, ma'am. चलो दैट्स गुड अगर नहीं हुआ है ना, बट इट इज अ वेरी कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो यूजुअली यंग गर्ल्स या ग्रोइंग चिल्ड्रंस में डेवलप हो जाती है व्हेन दे आर नॉट टेकिंग सोर्सेज ऑफ आयरन। ठीक है। सो ओवर हियर स्पेशली इट इज आल्सो अकरिंग इन वेजिटेरियंस। ठीक है। हीमोसिड्रोसिस, इट इज आल्सो अ डिसऑर्डर दैट अकर ड्यू टू द एक्सेसिव आयरन इन द बॉडी। मीन्स अगर आपकी बॉडी में आयरन बहुत ज्यादा आप ले रहे हो, एंड इन दैट कंडीशन इट इज कॉल्ड हीमोसिड्रोसिस। ठीक है। और वो क्या होता है? अगर आप नहीं उसको ट्रीट करा रहे हो, इट विल रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ आयरन टॉक्सिसिटी। हीमोसिड्रोसिस जो है इट इज मोस्टली सीन इन हीमोफिलिक एंड हीमोलाइटिक एनीमिया पेशेंट्स ड्यू टू द ट्रांसफ्यूजन्स।
ठीक है. Excessive iron is deposited as hemosiderin and ferritin in the body. So this is all about the different physiological ions present in the body. हाँ जी, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, you can ask me. कैल्शियम वाली स्लाइड दिखाना प्लीज. मैम एमएसटी की कोई डेट वेट निकली है अभी? बेटा अभी तो कोई डेट नहीं निकली, निकलेगी. अच्छा, मुझे आप लोगों को ये भी बताना था बेटा, जो कल आपका टेस्ट हुआ है ना, अब आप लोगों के जो एमएसटीज होते हैं ना बेटा, वो भी ऐसे ही सब्जेक्टिव एमएसटीज होते हैं, एंड यू विल राइट ऑन कर दो. प्लीज बता देना थोड़ा सा. कोई बात नहीं, बता देते हैं. बाकी सारे फिजियोलॉजिकल आयंस आपको क्लियर है. एग्जाम में यूजुअली क्वेश्चन आता है, या तो वो नाम से आपसे किसी एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल आयन के बारे में पूछ लेंगे, दैट गिव द फंक्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन. ओके, अदरवाइज इस पे बेटा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, तो वो भी आप इम्पोर्टेंट है. बेटा सोर्सेस सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपको 2-2 3-3 सोर्सेस पता होने चाहिए. ओके. ठीक है, एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि इस पर्टिकुलर उसके लिए कौन कौन से सोर्सेज होते हैं. तो मैम एमएसटी के लिए सिलेबस तभी बताओगे कि अब तक का जो दिख रहा है सारा कुछ ही आएगा? बेटा जो अभी तक कराया वो तो आएगा ही आएगा सारा. मतलब कोई सिलेबस नहीं होगा जैसे? नहीं, सिलेबस होगा ना बेटा, जो आपका जो हो चुके हैं ऑलमोस्ट उसी से आएगा आपका. हाँ, वही वही पूछ रहा हूँ मैम कि अब तक का सारा आएगा या उसी में से आप कुछ दोगे? मैं समझ नहीं पा रही क्या कह रहे हो आप. मतलब जो आपका अभी तक मॉड्यूल 1 हुआ है, मॉड्यूल 2 हुआ है ना बेटा. हाँ जी मैम, वही पूछ रहा हूँ, या मॉड्यूल 1 में से आप कुछ टॉपिक्स या कुछ ऐसे दोगे या वो सभी आएंगे? बेटा सारे ही तैयार करने हैं, ऐसे नहीं हम आपको बताएंगे कि आपने ये करना है. वो मैं आपको जरूर बता सकती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. या जो ऑलरेडी हमारे पास पुराने क्वेश्चंस वगैरह है ना, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह, इनमें क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक आप ज्यादा स्ट्रेसफुली प्रिपेयर करने हैं. बाकी Excuse me, ma'am. तो कुछ भी आ सकता है पेपर में ना. हाँ जी, मैम बीच बीच में कोई क्वेश्चन भी बना के दे दिया करो. हाँ जी क्वेश्चन भी बना के दे दिया बेटा, करो. जो अभी आपको दिए है ना उस दिन, अभी आपका टेस्ट हुआ है ना कल, उसमें जो क्वेश्चंस आपको दिए है ना, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो प्रिपेयर कर लो. ठीक है, Excuse me, ma'am. बाकी जब मॉड्यूल खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको और क्वेश्चंस दे दूंगी. मैम हाँ जी मैम एमएसटी जो आप कह रहे हैं, तो मैम कुछ आपको आइडिया है मतलब कब तक होंगे ये एमएसटी हमारे स्टार्ट? बेटा, अभी तो कोई एग्जैक्ट ऐसी इंफॉर्मेशन है नहीं, और मैं आपको ऐसे ही कोई डेट नहीं, मतलब यस मैम. मतलब जैसे अभी कुछ भी इस तरीके का कोई वो नहीं हुआ है डिस्कशन ना. यस मैम. हाँ, तो अभी तो नहीं. आपकी क्लासेस आई थिंक 28 अगस्त से स्टार्ट हुई थी. कब हुई थी? फर्स्ट से हुई थी. 24 से एक हफ्ता वो चला था मैम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम चला था. आफ्टर दैट फ्रॉम 1 to 7 ब्रिज कोर्स था, सितंबर से हुई थी उसके ना. बाद फिर था. अच्छा, 7 सितंबर के बाद आप लोगों की शुरू हुई है ना? मेन शुरू हुई थी, पर लेकिन 1 to 7 ब्रिज कोर्स चला था तो वो बेटा पढ़ाई था ही. बेटा हो सकता है लाइक जैसे आपका दिवाली से पहले जो है ना, आपका फर्स्ट एमएसटी हो जाएगा बेटा. दिस इज ओनली अ रफ टेंटेटिव डेट. ठीक है, ठीक है. यूजुअली बिकॉज आई एम ऑल्सो इन एग्जामिनेशन कमिटी ना, तो एज सच तो अभी तक कोई डिस्कशन हुआ नहीं है, बट बेस्ड ऑन माय प्रीवियस एक्सपीरियंस
it will be before Diwali. नवंबर में ना इस बार दिवाली। 14th. Yes, हाँ, ma'am. 14 नवंबर। यस मैम। हाँ, तो आपको वैसे पहले इंटीमेट किया जाएगा, तो इसलिए डोंट टेक टेंशन, ठीक है। आप लोगों को पहले बताया जाएगा कि कब आप लोगों के एमएसटीज हैं। कितनी बस देर पहले यही बता है दीजिएगा। यही है कि जो आप लोगों को कराया जा रहा है, आप डेली उस चीज को रिवाइज करो, ठीक है। इनिशियली तो आप लोगों को बताया जाएगा, इवन मैं मतलब एचओडी मैम से डिस्कस भी कर लूंगी इस चीज के बारे में ना, फिर आपको एक टेंटेटिव रफ आइडिया दे दूंगी। बट मे बी बिफोर दिवाली योर फर्स्ट एमएसटी विल बी डन। हाँ जी, कैल्शियम वाली स्लाइड बेटा किसको समझ नहीं आई थी? अच्छा मैम, अपनी लैंग्वेज में लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है? बेटा अपनी लैंग्वेज में लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कंटेंट पर उसमें होना चाहिए, ये नहीं कि आप अपनी लैंग्वेज में हाँ, कुछ वो तो और होगा ही। है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो लाइंस मैंने बोली है या आपने वही लिखनी है, आप उस चीज को अपनी उसमें एक्सप्लेन कर दो, बट जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है, जो फंक्शंस है, जो सोर्सेज है, जो मेन चीज है, वो वहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। तो कैल्शियम जो है, इट्स अ मोस्ट अबेंडेंट मिनरल इन द बॉडी, ठीक है, एंड इट्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। 99% कैल्शियम आपके बोन्स में प्रेजेंट होता है, 1% जो है वो आउटसाइड द स्केलेटल टिश्यू। सोर्सेस कैल्शियम के नट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, केन्ड फिश विद बोन्स, मिल्क, फोर्टिफाइड टोफू एंड फोर्टिफाइड सोया मिल्क। फंक्शंस कैल्शियम का बेसिकली बोन्स और टीथ के लिए होता है, सेल्स के लिए होता है। सिक्रीटरी प्रोसेसेस में कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल अप्लाई करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस में कैल्शियम प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। इट हैज आल्सो इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन एंड कंट्रोलिंग द हार्ट रेट। मैसेंजर भी एक्ट करता है इन सेल सिग्नलिंग प्रोसेसेस। सो बेसिकली अगर आप देखें, ऑलमोस्ट सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके फंक्शंस कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं। दे हैव सम ऑफ द एक्सेप्शनल फंक्शन, अदरवाइज मसल कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, एसिड बेस बैलेंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो आपको कुछ पर्टिकुलर आयंस में बिल्कुल एक जैसे मिलेंगे, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है बेटा, आप एक टेबल बना लो और टेबल में आप उनके मतलब जो सिमिलर फंक्शंस हैं वो एक जगह लिख लो, जो अनसिमिलर है वो उस टेबल में फिट कर दो, देन इजीली यू विल बी एबल टू लर्न। सिमिलरली डिजीज कंडीशन के लिए भी एक ऐसी टेबल बना लो जिसमें आप एक ही टेबल में ये सारी चीजें आप लिख सकते हो इजीली। आप उसके सोर्सेस लिख सकते हो, उसके डिजीज कंडीशंस लिख सकते हो, और आप लिख सकते हो उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर फिजियोलॉजिकल आयंस इन द body. I hope that all has understood the functions, ठीक है। यस मैम। हाँ जी, तो बेटा रिवाइज करके आना कल के लिए, और नेक्स्ट टाइम बेटा आपका जब भी एग्जाम होगा, यू हैव ऑल, आई एम सेइंग दैट यू ऑल हैव टू कीप योर कैमरा ऑन एंड इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ गूगल फॉर्म ओनली, क्योंकि जो गूगल फॉर्म में कुछ बच्चों ने लिख नहीं पाए, आप हार्ड कॉपी में लिखोगे, बट यू हैव टू सबमिट दैट by making PDF and turned in on your Google Classroom, ठीक है। और कोई क्वेरीज में किसी बच्चे को हो? हाँ जी मैम, एनी फर्दर इंफॉर्मेशन कि हमारे कॉलेजेस कब ओपन हो रहे हैं? बेटा अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आज पर अगर देखो आप न्यूज़पेपर से जो न्यूज मिल रही है उसमें ऑलरेडी 10th और 12th वाले स्कूल्स तो खुल ही चुके हैं, वहां पे तो ऑलमोस्ट बच्चे वगैरह जाने लगे, तो ऐसे लग रहा है जैसे आप लोगों का भी ओपन अप तो होगा ही, बट अभी ऐसे कोई कंफर्मेशन नहीं आई है किसी ऑफिशियल की तरफ से ना, जो हमारे मतलब पीटीयू या सीजीसी की तरफ से आई है, क्योंकि हमारा तो उनकी तरफ से ही पता लगेगा जब पीटीयू और सीजीसी इस चीज के लिए वो करेगा अलाउ ना।